Okay, so in the last lecture, we have discussed about junction field effect transistor, where we have discussed about its working principle and construction. So we have discussed that in junction field effect transistor, gate junction should be reverse bias always, or when VGS equal to 0 volt, the maximum current condition was then. Otherwise, अगर जैसे ही आप VGS की कोई वैल्यू पुट कर रहे थे -1, -2, -3, so current will be always in the on the lesser side than VGS equal to 0 volt. मतलब VGS equal to 0 volt was the maximum current condition. उसके corresponding आप जब भी कोई वोल्टेज अप्लाई कर रहे थे इन द रिवर्स बायस मोड, so current was always lesser than the VGS equal to 0 volt condition. Okay, तो करंट जो है वो एक डायरेक्शन में ही चेंज हो रहा था अल्टीमेटली. VGS इक्वल टू 0 वोल्ट को अगर रेफरेंस समझे तो वहां से सिर्फ एक मिनिमा की तरफ कम होने की तरफ ही जा रहा था. उसका एग्जांपल भी हमने डिस्कस किया था टैप की तरह, कि अगर टैप जो है उसको अगर हम ओपन रखते हैं VGS इक्वल टू 0 मान के, सो दैट इज द मैक्सिमम सिचुएशन. उसके अलावा आप कुछ भी टैप पे ऑपरेट करेंगे तो करंट विल बी रिड्यूस्ड. ये हमने डिस्कशन किया था. सो the problem in the JFET was this, the current is only working, or the current conduction always takes place in the depletion mode. Means current is decreasing from the maximum value in particular direction for a particular value of reverse bias of VGS. So gate must be reverse bias in the JFET. Okay. Now our next target is to understand about the second type of FET, field effect transistor, that is MOSFET. Okay. So welcome to this particular lecture. In this lecture, we will discuss about MOSFET, that is metal oxide semiconductor field effect transistor. देखो ये डिस्कशन हमने किया था अबाउट JFET, तो एक बार आप थोड़ा सा इसको रिवाइज कर सकें, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको लगाया है ताकि आप देख सकें. So this is how JFET looks like. N channel JFET looks like. Gate were there and they are connected internally, source, drain, and this is how the gates were fabricated. P-type gates were fabricated in the N-channel JFET. Okay, so today's discussion will be on MOSFET. Okay, so let me share the notes with you. So you can write down the topic as discussion on MOSFET or basics of MOSFET. तो सिचुएशन हमारे माइंड में क्लियर रहनी चाहिए कि अभी तक हमने JFET पढ़ा है, फिर MOSFET कैसे इनसे अलग होगा, एंड हाउ आर द working and construction of MOSFET different from the JFET. Okay, so let's start the discussion on this. Okay, so MOSFET, that stands for metal ऑक्साइड सेमीकंडक्टर. हम समझेंगे इसको कि इसको मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर क्यों कहते हैं, क्या इसकी कंस्ट्रक्शन है, उसी के बेसिस पे इसको नाम दिया गया है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर. ओके, सो डिस्कशन विल बी ऑन MOSFET एंड दिस इज one of the most important electronic device which is used nowadays. Okay, तो MOSFET ही सबसे ज्यादा यूज होता है in current electronic devices, current electronic circuits or computers. Okay, so see, MOSFET actually दो तरह के होंगे. First is DMOSFET, which is known as depletion type MOSFET. Okay, first is DMOSFET and the second is enhancement type MOSFET, that is known as EMOSFET. कितने तरह के MOSFET हो गए? दो तरह के, DMOSFET and EMOSFET. Okay, so जो DMOSFET है, now see, जो डिप्लेशन MOSFET है, that can be operated in depleted and enhancement mode both. तो जो DMOSFET है वो दोनों काम कर सकता है. क्या क्या?
डिप्लेशन मोड मतलब करंट को डिक्रीज करने वाला काम जो जेफेट कर रहा था, और करंट को इनहेंस भी कर सकता है। तो जो VGS इक्वल टू 0 की कंडीशन जो जेफेट में हमने कही थी कि वहां से हमेशा नीचे की तरफ ही जाएगा, इसमें डी मोसफेट में दोनों काम हो सकते हैं कि मैक्सिमम VGS इक्वल टू 0 से अगर एक पर्टिकुलर टाइप की वोल्टेज लगेगी तो कम की तरफ जाएगा, डिप्लेशन मोड की तरफ जाएगा। अगर अपोजिट टाइप की वोल्टेज लगेगी तो वहां से इन्हांसमेंट मोड की तरफ जाएगा, करंट का इंक्रीज होगा। तो जो VGS इक्वल टू 0 वोल्ट वाली कंडीशन है वो मैक्सिमम करंट कंडीशन इसमें नहीं रहेगी। ठीक है, तो जो डी मोसफेट है वो दोनों मोड्स में काम कर सकता है, डिप्लेशन मोड में भी और इन्हांसमेंट मोड में। तो इन्हांसमेंट का मतलब है करंट का इंक्रीज करना, इनहेंस करना। डिप्लेशन का मतलब है करंट का डिक्रीज होना। ठीक है, तो दोनों। और ई मोसफेट है दैट कैन बी ओनली ऑपरेटेड इन द इन्हांसमेंट मोड। तो जो ई मोसफेट है वो सिर्फ इन्हांसमेंट मोड में ही काम करेगा। बात समझ में आ गई? तो बेसिक डिफरेंस क्लियर है, यहीं से क्वेश्चन बन जाते हैं। डी मोसफेट कौन सा मोसफेट है जो दोनों मोड में काम करेगा? देखो, जेफेट में, डी मोसफेट में और ई मोसफेट में आपको एकदम फंडामेंटल डिफरेंस जो है वो क्लियर होने चाहिए, और इससे आपके क्वेश्चन इजीली बन जाएंगे। ठीक है, तो ई मोसफेट ओनली वर्क्स इन द इन्हांसमेंट मोड, डी मोसफेट वर्क्स इन द डिप्लेशन एंड द इन्हांसमेंट मोड बोथ। अब देखो इनकी कंस्ट्रक्शन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन साइड से क्या डिफरेंस है कि ये वही आपकी बार है। तो अगर हम डिस्कशन कर रहे हैं एन चैनल डी मोसफेट, ये क्या है? एन चैनल डी मोसफेट, एन चैनल डी मोसफेट। तो देखो, एन चैनल की बार है, इसके अंदर ये पी टाइप का एक सबस्ट्रेट है। ठीक है, सो दिस इज द पी टाइप, जैसे हमने जेफेट में भी देखा था कि पी टाइप के एक सबस्ट्रेट ऐड था। ओके, यहां पे दूसरी साइड में सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 लेयर, ये किस चीज की लेयर है? ऑक्साइड लेयर है, सिलिकॉन O2, SiO2 लेयर है। ठीक है, दिस लेयर इज देयर एंड देन देयर इज गेट, और ये है गेट, मेटल कॉन्टेक्ट, इट इज गेट। ओके, नाउ सी, ये ड्रेन है, ये सोर्स है, वैसा ही है सब कुछ। लेकिन यहां पे जो पहले डायरेक्ट गेट था, जो चैनल के साथ डायरेक्ट गेट कनेक्ट था, अब वो चैनल के साथ कनेक्ट ना होके उसके बीच में एक SiO2 लेयर क्रिएट कर दी गई है। बात समझ में आ गई? जेफेट में क्या था देखो, तो जेफेट में डायरेक्ट गेट जो है वो चैनल के साथ कनेक्टेड है, यहां पे गेट और चैनल डायरेक्ट कनेक्टेड है। लेकिन अब क्या हुआ है कि यहां पे एक SiO2 की लेयर बना के और फिर गेट बनाया गया है। तो गेट और चैनल अब डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, गेट और चैनल अब डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। चैनल का मतलब समझते हो ना? चैनल क्या है? जो बीच वाला जो बार है उसको हम चैनल बोलते हैं, थ्रू विच द कंडक्शन टेक्स प्लेस। ओके, तो ये डिफरेंस फंडामेंटल समझ में आ गया कि अब डिफरेंस क्या हुआ कि ये तो आपका पी टाइप हो गया। ठीक है, ऐसे। और ये जो यहाँ पे डायरेक्ट जो गेट टच था वो अब गेट चैनल के साथ कनेक्ट ना होके एक बीच में SiO2 लेयर है और फिर गेट है। और यहाँ पे तो क्या था जेफेट में, तो कि डायरेक्टली गेट कनेक्टेड थे। अब यहाँ पे देखो डिफरेंस क्या है कि सबस्ट्रेट जो है उसका एक अलग नोब है फिलहाल, गेट का एक अलग है, सोर्स का अलग है और ड्रेन का अलग है। However, this source and substrate are connected internally. सबस्ट्रेट और सोर्स जो ये कनेक्टेड होते हैं। तो समझ में आ गया? अभी जो गेट और चैनल है वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। पहला फंडामेंटल डिफरेंस ये हो गया। और देखो इसका नाम मोसफेट क्यों है? ये मेटल है, ये ऑक्साइड की लेयर है और ये सेमीकंडक्टर है। तो मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, दैट स्टैंड फॉर मोसफेट। ओके, तो मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, मेटल का गेट कॉन्टेक्ट, ऑक्साइड लेयर एंड सेमीकंडक्टर चैनल, तो मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, इसीलिए इसका नाम क्या है? मोसफेट है। ठीक है, आगे चलते हैं एन चैनल ई मोसफेट। देखो ये एन चैनल ज्यादा यूज होता है इसलिए हम एन चैनल को यूज कर रहे हैं। इसका उल्टा पी चैनल भी हम देख लेंगे कैसा दिखेगा। तो नाउ सी, अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है अगर मैं एक बार इसको क्लियर कर दूं। देखो यहां पे बाकी सब तो ठीक है, गेट भी वही है, SiO2 लेयर भी वही है, लेकिन जो सबस्ट्रेट है, जो पी टाइप है, ये कंप्लीट थ्रू द चैनल है। देखो यहां पे ये इतना था,
तो इसका मतलब जब ये मैन्युफैक्चर किया गया, जब ये कंस्ट्रक्ट किया गया, तो यहाँ पे तो इस डी मोसफेट में तो ये जो ड्रेन और जो सोर्स है, ड्रेन और सोर्स है, इसके बीच में कंडक्शन छोड़ दिया गया, एक एन चैनल छोड़ दिया गया जहां से करंट कंडक्शन टेक प्लेस कर सकता है। ऑलरेडी यहां से करंट जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि ये विड्थ कम हो रही है कि ज्यादा हो रही है, करंट इंक्रीज और डिक्रीज कर जाएगा। तो मतलब समवट सिमिलर टू दिस है, बस थोड़ा डिफरेंस है। इसमें भी हम चैनल की विड्थ के साथ खेलते थे, लेकिन चैनल की विड्थ ऑलरेडी थी, यहां भी ऑलरेडी है। अब इसको ज्यादा करना है कि कम करना है, यहां पे ये खेल चलेगा, ठीक है। लेकिन इस केस में ई मोसफेट में ये जो ड्रेन और सोर्स के बीच में कोई भी डायरेक्ट चैनल नहीं है, कोई भी डायरेक्ट चैनल नहीं है, चैनल इंड्यूस करना पड़ेगा फॉर द करंट कंडक्शन। बात समझ में आ गई? तो ई मोसफेट के केस में कोई भी चैनल ओरिजिनली एग्जिस्ट नहीं करता है बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स, और इनके बीच में अगर हमें करंट कंडक्शन कराना है तो इनके बीच में हमें चैनल इंड्यूस करना पड़ेगा। चैनल क्या करना पड़ेगा? इंड्यूस करना पड़ेगा, और यहां पे ऑलरेडी गिवन है। डिफरेंस समझ में आ गया डी मोसफेट में और ई मोसफेट में? डी मोसफेट चैनल की विड्थ बढ़ा सकता है, घटा सकता है, इसीलिए वो डिप्लेशन मोड और इनहांसमेंट मोड में काम करता है कि जब चैनल की विड्थ बढ़ा देगा तो इसका मतलब करंट ज्यादा जाने लग जाएगा, घटा देगा तो करंट कम जाने लग जाएगा। दूसरी तरफ यहां पे सर्टेन सिचुएशन तो ये है कि जब तक इन दोनों के बीच में कोई चैनल बनेगा नहीं, इन दोनों के ड्रेन और सोर्स के बीच में जब तक कोई रास्ता बनेगा नहीं, तब तक तो करंट कंडक्शन होगा ही नहीं, तो करंट जीरो पे है। लेकिन जैसे ही उनके बीच में एक चैनल बन जाएगा, एक चैनल इंड्यूस हो जाएगा, तो करंट कंडक्शन होना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो कि जीरो से लेके करंट कहीं बढ़ना शुरू करेगा, कि करंट जो है वो बढ़ रहा है किसी तरफ। तो इसीलिए उसको कहा गया इनहांसमेंट मोड, कि ऑलरेडी करंट तो है नहीं, क्योंकि चैनल कट ऑफ है एक दूसरे से, ड्रेन और सोर्स जो है वो कट ऑफ है। इसीलिए अगर हम चैनल इंड्यूस भी करेंगे तो करंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाता चला जाएगा, लेकिन एक सर्टेन ऑपरेटिंग वोल्टेज पे ही वो चीज हो सकती है। अदरवाइज तो आपको जब तक वो इंडक्शन नहीं हुआ, जब तक वो चैनल इंड्यूस नहीं हुआ, उस सिचुएशन तक आपको कोई भी करंट देखने को नहीं मिलेगा। बस यही फंडामेंटल डिफरेंस है, और यही सारी राम कहानी इन दोनों की, ठीक है। अगर यहां पे समझ में आ गया है तो समझो मोसफेट आपका क्लियर हो गया। बाकी सब फिर फॉर्मल लैंग्वेज में डिस्कशन करेंगे। देखो, अब लिख लो डी मोसफेट के बारे में शुरू में पढ़ते हैं कि व्हाट इज द डी मोसफेट। ओके, सो डी मोसफेट में हम एन चैनल डी मोसफेट को समझते हैं। सो इट इज ए पीस ऑफ एन टाइप मटेरियल with a p type region that is substrate and an insulated gate on the left। तो गेट हमने देखा, और इसको भी मैं एक बार मोसफेट भी आपको एक बार यहां पे शो कर देता हूं। एक्चुअली दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। ठीक है, अभी साथ साथ इसको देख लेंगे। ठीक है, देखो, सो पीस ऑफ एन टाइप मटेरियल, एन चैनल डी मोसफेट की बात करें तो ये एन चैनल आपका हो गया, एंड एन इंसुलेटेड गेट ऑन द लेफ्ट। The free electron flowing from the source to drain must pass through the narrow channel between gate and P type region। तो ऑलरेडी देखो ये जो P type सबस्ट्रेट है, दूसरी तरफ से मैंने ऐसे बनाया था इसको, जो पिछली स्लाइड में था, लेकिन ये ऑलरेडी देखो इनके बीच में एक चैनल जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये सबस्ट्रेट है P टाइप वाला, ठीक है, ये सबस्ट्रेट कह लो, इसको बॉडी भी कह सकते हैं, और ये N चैनल आपके ऑलरेडी कनेक्टेड है, इनके बीच में कनेक्शन है, इनके बीच में करंट फ्लो हो सकता है। ये गेट है जो कि मेटल इलेक्ट्रोड है, मेटल का है, ये आपकी सिलिकॉन ऑक्साइड लेयर है, SiO2 लेयर है, और ये आपका एन चैनल है। ठीक है, तो इसी को ऐसे हमने करके समझा था। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। ओके, ओके, सो अगर आपको इससे कंपेयर करना है, सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। इसको और इसको कंपेयर कर सकते हो, एन चैनल जेफेट को। ये आपका सबस्ट्रेट है P टाइप,
ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है और ये इनके बीच का एक एन चैनल है. गेट is this one, silicon oxide layer, metal oxide layer is here, source and drain. So this is how it looks like. Similarly अगर आप P चैनल की बात करें, तो P चैनल में देखो क्या है कि P चैनल में जो बार है, जो चैनल है वो P टाइप का है, जो सबस्ट्रेट है वो N टाइप का है, ये N टाइप है. तो जस्ट रेसिप्रोकल हो गया, P टाइप यहाँ पे N टाइप पे चला गया, N टाइप P टाइप, लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पे अब P चैनल का भी कंडक्शन है. ये डी मोसफेट की बात हो रही है, ठीक है. तो डी मोसफेट में इट इज क्लियर कि चैनल जो है वो ऑलरेडी गिवन होता है उसके बीच में. क्लियर है. तो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड. ओके, सो नाउ ये वही चीजें जो हमने डिस्कस की हैं वही लिखी हुई हैं. तो थिन लेयर ऑफ SiO2, छोटा क्वेश्चन बन सकता है, इज डिपॉजिटेड ओवर ए स्मॉल पोर्शन ऑफ चैनल. ए मेटालिक गेट, गेट इज मेटालिक, इसीलिए उसका नाम मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर है, इज डिपॉजिटेड ओवर द ऑक्साइड लेयर एंड सिलिकॉन ऑक्साइड इज एन इंसुलेटर. सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज एन इंसुलेटर, देयरफॉर गेट इज इंसुलेटेड फ्रॉम द चैनल. तो यही बात हमने डिस्कस की कि गेट और चैनल अभी डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, उनके बीच में एक सिलिकॉन ऑक्साइड, सिलिकॉन O2 SiO2 की एक लेयर है, तो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है. ठीक है. So these are the things here. So now the fundamental difference between JFET and DMOSFET is that कि जहां पे JFET में हम कहते थे कि गेट पे सिर्फ रिवर्स वोल्टेज ही हम अप्लाई कर सकते हैं, अब चूंकि यहाँ पे N चैनल से वो सेपरेटेड है, डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, so as gate is insulated from the channel, therefore we can apply either positive और नेगेटिव वोल्टेज टू द गेट. अब गेट के ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज भी अप्लाई कर सकते हैं और नेगेटिव भी अप्लाई कर सकते हैं. अब जरूरी नहीं है कि गेट को रिवर्स बायस ही रखना है, क्योंकि इट इज नाउ सेपरेटेड फ्रॉम द चैनल. ओके, द नेक्स्ट इज E MOSFET, that is N channel E MOSFET. So gate construction is similar to D MOSFET. गेट वाली साइड से बिल्कुल सेम है. Now the actual difference is here. That is no channel exist between source and the drain. कोई भी डायरेक्ट चैनल एग्जिस्ट नहीं करता है. सबस्ट्रेट है वही कंप्लीटली थ्रू आउट द बार है. सबस्ट्रेट एक्सटेंड्स कंप्लीटली टू SiO2 लेयर. मतलब ये जो सबस्ट्रेट है ये कंप्लीटली यहां तक फैला हुआ है. ठीक है. तो इन दोनों के बीच में कट ऑफ है, डायरेक्ट कोई भी कनेक्शन यहां से नहीं है. फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का, फ्लो ऑफ चार्ज का कनेक्शन नहीं है. सो इट रिक्वायर्स a proper gate voltage to form a channel known as induced channel. ये हमने अभी डिस्कशन किया कि अगर हमने चैनल इंड्यूस करना है तो वी नीड ए प्रॉपर ऑपरेटिंग वोल्टेज. जब तक वो ऑपरेटिंग वोल्टेज नहीं होगी तब तक कोई भी करंट कंडक्शन नहीं होगा. बात क्लियर है. So let's see how E MOSFET looks like. Now you can see the difference here. So here the substrate which is the P type, आप देख सकते हो दैट इज एक्सटेंडेड टिल SiO2 लेयर. ये अगर SiO2 लेयर है तो यहां तक बिल्कुल टच कर रहा है. जो नीले वाला है वो आपका पूरा सबस्ट्रेट है. तो अब N चैनल डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है. N चैनल्स हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है. सिमिलरली अगर P चैनल में हम देखें तो P चैनल मोसफेट में, E मोसफेट में जो N टाइप का जो सबस्ट्रेट है दैट इज एक्सटेंडेड टिल SiO2 लेयर, और जो P टाइप सोर्स और ड्रेन है वो आपस में कनेक्ट नहीं कर रहे हैं. ठीक है. देखो भूलोगे तो नहीं कि N चैनल और P चैनल में कोई डिफरेंस. N चैनल का मतलब है कि सोर्स और ड्रेन जो है वो N टाइप के हैं. P चैनल का मतलब है सोर्स और जो ड्रेन है वो P टाइप के हैं. P चैनल का मतलब है सोर्स और ड्रेन जो है P टाइप के हैं. N चैनल का मतलब है सोर्स और ड्रेन जो है N टाइप के हैं.
ठीक है। तो पहले तो जब जेफेट में तो आप कर रहे थे तो बहुत आसानी से कनेक्ट कर पा रहे थे कि भाई एन चैनल की बार अगर बची हुई है तो एन चैनल जेफेट, पी की बची है तो पी चैनल जेफेट। अभी सबस्ट्रेट जब पूरा कंप्लीटली एक्सटेंड करता है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन बन सकता है माइंड में, इसीलिए ध्यान रखना है कि पी चैनल का मतलब है कि सोर्स और ड्रेन कैसे हैं। एक्चुअली वही तो हमारे करंट कंडक्टिंग बार थी, बाकी तो सबस्ट्रेट ने अगर कब्जा कर लिया है तो क्या करें। लेकिन एक्चुअल में जो सिचुएशन है वो तो सोर्स और ड्रेन जहां से जिस बार से कट के बने हैं वही तो एक्चुअली टाइप बताता है कि वो बार कैसी है, चैनल कैसा है। तो पी चैनल है कि एन चैनल है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो इन दोनों में डिफरेंस आप देख सकते हो, डी मोसफेट में और ई मोसफेट में कंस्ट्रक्शन वाइज क्या डिफरेंस है। तो गेट साइड से तो लगभग लगभग सब कुछ सेम है, बस जो डिफरेंस है वो ये पी टाइप सबस्ट्रेट है, ये कंप्लीटली एक्सटेंडेड है इन टाइप इन केस ऑफ ई मोसफेट। बात क्लियर है, कंफ्यूजन तो नहीं होगा कोई। So this is how you can represent D MOSFET. So let's see, N channel D MOSFET and P channel D MOSFET दो तरह के होंगे। So ये हमने देखा कि N चैनल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, N टाइप का ड्रेन और सोर्स और P टाइप का सबस्ट्रेट। So this is the symbol. ओके, तो गेट, इसके बीच में गैप देके चैनल, एंड देन ड्रेन, देन सोर्स, और ये सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट का जो एरो है दैट पॉइंट्स टुवर्ड्स एन टाइप मटेरियल, जिधर एन टाइप मटेरियल होगा उधर पॉइंट करेगा। तो चैनल इज नाउ एन टाइप, तो एन चैनल की तरफ वो पॉइंट कर रहा है, ठीक है। सो और इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि कई बार क्या करते हैं, इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दो या यहाँ से कनेक्ट कर दो, क्योंकि सबस्ट्रेट और सोर्स जो है वो इंटरनली कनेक्टेड ही है, ठीक है। तो ऐसा भी दिख सकता है और इसको कनेक्ट करके भी दिखा सकते हैं, तो दोनों ही सेम चीज है, क्योंकि सबस्ट्रेट और सोर्स जो है वो इंटरनली कनेक्टेड होते हैं। क्लियर है। सो यहां से देख सकते हो कि पी टाइप सबस्ट्रेट लेफ्ट द स्मॉल पैसेज एट द लेफ्ट साइड, ये एक चैनल के अंदर एक विड्थ ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है जहां से करंट कंडक्शन हो सकता है। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस MOSFET विच इज मेकिंग इट डिफरेंट फ्रॉम द JFET इज दैट कि यहाँ पे देखो गेट मेटल का है, बीच में एक ऑक्साइड है लेयर है और दूसरी तरफ चैनल है। तो मतलब ये काम करता है कैपेसिटर की तरह, एक कैपेसिटर की तरह ये काम करता है। किसकी तरह? कैपेसिटर की तरह, ठीक है। तो गेट अपीयर्स लाइक ए कैपेसिटर प्लेट, उसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक समझे, जैसे कि मेटल ऑक्साइड की लेयर है और दूसरी तरफ एक और प्लेट है। सो इट इज लुकिंग लाइक समथिंग लाइक ए कैपेसिटर, ओके। एंड ये हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है, ठीक है। सो नाउ हाउ पी चैनल MOSFET, डी MOSFET ही एक्चुअली, ओके, पी चैनल डी MOSFET ही है ये। सो दिस वन, now in this case you see arrow is pointing towards the n-type material, so n-type material is the substrate, तो substrate की तरफ वो define कर रहा है arrow, बाकी सब कुछ same है। so this is how p channel MOSFET looks like, okay। तो p channel और n channel d MOSFET हमने अभी देख लिया, उनकी रिप्रेजेंटेशन कैसी है, उनकी कंस्ट्रक्शन कैसी है। अब समझते हैं इनका ऑपरेशन कैसे होता है, ठीक है, कैसे ये डिप्लेशन मोड और इन्हांसमेंट मोड में ये काम करते हैं, ठीक है। सो वर्किंग ऑफ डी MOSFET, ठीक है। नाउ वी नो दैट, पहले एक बार समझ लो इसको फिर लिख लेना, ठीक है। नाउ सी कि जो गेट साइड पे जो है दैट इज अ मेटल, बीच में ऑक्साइड और ये एक एन चैनल, तो मतलब हमारे पास एक कैपेसिटर जैसा काम हो गया है। अब सोचो अगर नेगेटिव वोल्टेज इस पे लगती है तो क्या होगा। जैसी नेगेटिव वोल्टेज यहाँ पे लगती है तो नेगेटिव वोल्टेज यहाँ पे हुई और पॉजिटिव यहाँ पे हुई। सो ड्यू टू दिस हम कह सकते हैं कि द नेगेटिव चार्ज इज अक्यूमुलेटेड ओवर द गेट, गेट के पास नेगेटिव चार्ज इधर अक्यूमुलेट हो गया है, बीच में देयर इज ऑक्साइड लेयर। तो इसको समझने के लिए ऐसे कह सकते हैं कि या तो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो कि यहां थे दे वर रिपेल्ड, या तो ऐसे समझो, या फिर ऐसे कहो
कि ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव इधर है तो इधर दूसरी कैपेसिटर की प्लेट पे पॉजिटिव आएगा और द पॉजिटिव चार्जेस आर अक्यूमुलेटेड ऑन दिस साइड। तो दोनों तरीके समझ सकते हो, इलेक्ट्रॉन यहां से उधर रिपेल हुए हैं तो पॉजिटिव चार्ज छोड़ गए हैं, वो रीजन कुछ पॉजिटिव हो गया है। इसका मतलब जैसे ही नेगेटिव वोल्टेज लगी है, सो एज द नेगेटिव वोल्टेज इज अप्लाइड, gate is accumulating negative charge, and due to this there is the accumulation of the positive charge near the SiO2 layer. It means the free electrons which were there in the n channel near SiO2, they were repelled और वो दूर चले गए हैं यहां से. So it means the region or this narrow region is now having less number of free electrons which were participating in the current conduction. So it means now less number of electrons are there, it means less current, more resistance. So the negative voltage here is actually reducing the current, which is the same phenomena that was occurring in JFET. JFET में भी यही हो रहा था, नेगेटिव वोल्टेज क्या कर रही थी, चैनल की विड्थ को नैरो कर रही थी, रेजिस्टेंस को बढ़ा रही थी, करंट को कम कर रही थी। यहां पे डायरेक्ट वो काम ना हो के यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ द कैपेसिटर इट इज हैपनिंग कि जो नेगेटिव चार्ज है ये समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग अवे एंड सम पॉजिटिव लेयर चार्ज इज हियर। सो दिस रीजन which is the small passage of the electrons that is now having less number of free electrons, or we can say this region is now depleted from free electrons. This region is now depleted from the free electrons. That is why this mode is known as depletion mode. That is why this mode is known as depletion mode. तो नेगेटिव जब वोल्टेज लग रही है तो करंट जो है वो कम हो रहा है, मोर नेगेटिव मोर लेस करंट। ओके, तो जितना ज्यादा नेगेटिव वोल्टेज लगेगी करंट उतना ही ड्रॉप होता चला जाएगा। तो जो वैल्यू जीरो पे, जब VGS जीरो से पे सेट थी और जब VGS नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो करंट जो है वो रिड्यूस होता चला जा रहा है इन द सिमिलर फैशन टू JFET। क्लियर है बात? तो डिप्लेशन मोड तो इसका वैसा ही है जैसे JFET का था। व्हाट अबाउट द पॉजिटिव वोल्टेज? अगर इस पे पॉजिटिव वोल्टेज लगेगी सो व्हाट विल हैपन, इसी को बनाते हैं एक बार। ये गेट है, सो हेयर अगर पॉजिटिव वोल्टेज लगेगी, सो पॉजिटिव वोल्टेज की वजह से पॉजिटिव चार्ज विल बी हेयर, एंड ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज यू कैन से इलेक्ट्रॉन्स will be attracted towards SiO2 region. Electrons will be attracted towards this region. So more electrons will be accumulated in this region. More electrons will be accumulated in this region which were not there initially. So it means due to the positive voltage application on the gate side, more free electrons are actually gathered here, which are now taking or which are now participating in the current conduction. It means current will now increase, current is now enhanced, and that is why the mode is known as enhancement mode of D MOSFET. So by varying this voltage, negative positive or positive negative, this device can work in two modes, enhancement mode and डिप्लेशन मोड। तो JFET में जो हमारे पास सिचुएशन थी कि हम करंट को एक पर्टिकुलर VGS इक्वल टू जीरो से ऊपर नहीं बढ़ा पा रहे थे, दैट इज नाउ ओवरलुक हियर। सो यहां पे वो सोल्व हो गई है कि आप पॉजिटिव वोल्टेज लगा रहे हैं तो भी कंडक्शन हो रहा है इन द अपोजिट डायरेक्शन, इट मींस करंट इज नाउ इंक्रीजिंग, सो दैट इज नोन एज इनहांसमेंट मोड। बात क्लियर है? यही इस डिस्कशन में लिखा हुआ है, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर योर notes. Okay. So this is for the enhancement mode, positive and negative. So positive और negative से it will again, अब यहाँ पे वही हमने डिस्कशन किया अभी कि for the positive यहाँ पे positive आ जाएंगे, यहाँ पे negative आ जाएंगे. So these electrons will now, these are the additional
electrons or the enhanced number of electrons which will now participate in the current conduction. So ultimately you can say the channel width here will also increase as compared to the depletion mode. तो ultimately वही बातें हैं, ठीक है. So this is the enhancement mode. Now, what are the important points or the facts about DMOSFET? Okay, so the source to drain current is controlled by electric field of the capacitor. जो source to drain current जो चल रहा है, which is the output current, जिसमें हमें इंटरेस्ट है, that is controlled by electric field at the capacitor. मतलब गेट पे कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है वो डिफाइन कर रही है कि करंट कैसा होगा. बात क्लियर है? इसीलिए इनको फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर कहा जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर कंट्रोलिंग द आउटपुट करंट. ओके. Additionally, a negligible gate current flows whether positive or negative voltage is applied to the gate. जैसे हम JFET में कहते थे कि एकदम जीरो करंट होगा, वैसा नहीं होता है, बट नेग्लिजिबली स्मॉल होता है, तो उसको जीरो के बराबर भी कंसीडर कर सकते हैं. ठीक है. द नेक्स्ट इज द कैपेसिटेंस ऑफ द गेट इज वेरी लो. तो अगर उसका कैपेसिटेंस पूछा जाए तो कैसा होता है? दैट इज वेरी लो. ओके. नाउ दिस इज हाउ द ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स लुक्स लाइक. देखो, VGS वर्सेस ID. VGS that is the gate source voltage versus ID. Now see, जब VGS 0 volt है, at this situation we have defined IDSS. The maximum current IDSS is defined as VGS equal to 0 volt. अब VGS equal to 0 volt से अगर नेगेटिव की तरफ लगी थी तो करंट जो है वो कम हो रहा था, तो करंट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग 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 लाइक दिस, और यहां पे आके करंट जीरो हो गया. दैट इज VGS ऑफ चैनल जो है वो कट ऑफ हो गया है. चैनल जो है वो कट ऑफ हो गया है. क्लियर है? इन द अपोजिट डायरेक्शन, व्हेन VGS इज पॉजिटिव, इट मींस enhancement mode is there, so current will increase from here like this. Okay, so in this situation, in this region, when VGS is greater than 0, in this situation ID is greater than IDSS. That is known as the enhancement mode. When VGS is less than 0, then ID is less than IDSS. That is the डिप्लेशन मोड. बात समझ में आ गई? तो डी मोसफेट की तो ये कहानी है. क्लियर है? नाउ व्हाट इज द इक्वेशन दैट इज सिमिलर टू द जेफेट? ID इक्वल टू IDSS 1 माइनस VGS अपॉन VGS ऑफ स्क्वायर. तो अगर ड्रेन करंट कैलकुलेट करना, दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट. एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं क्या डिफरेंस है. देखो, इस इक्वेशन का यूज करके अगर IDSS आपको 10 मिली एम्पेयर गिवन है, VGS ऑफ -8 वोल्ट है ऑफ वाली, और VGS अगर -3 वोल्ट है. डिप्लेशन मोड का क्वेश्चन है कि डिप्लेशन मोड में करंट कितना होगा. तो अगर हम इस इक्वेशन में वैल्यू लगाएं 10 into 1 minus VGS is -3 upon -8 square. So if we will solve this, it will be 3.91 मिली एम्पेयर. तो देखो, मैक्सिमम मतलब VGS इक्वल टू 0 पे 10 मिली एम्पेयर था, तो जब VGS नेगेटिव है, डिप्लेशन मोड में है, तो करंट की वैल्यू कम हो गई है, लगभग 1/3 हो चुकी है. दूसरी तरफ अगर VGS 3 वोल्ट है, दैट इज अ पॉजिटिव VGS जो इनहांसमेंट मोड की है, अगर वो अप्लाई यहां पे करते हैं तो यू कैन सी आंसर इज 18.9 मिली एम्पेयर. तो जो IDS 10 मिली एम्पेयर वाज द मैक्सिमम एट VGS इक्वल टू 0, दैट इज नाउ इंक्रीज्ड टू 18.9 मिली एम्पेयर. तो इट एक्सप्लेन्स, दिस न्यूमेरिकल एक्सप्लेन्स द कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो हमने देखी कि IDSS से भी ऊपर करंट जा सकता है व्हेन VGS is positive. So you can see कि 18.9 आया हुआ है as compared to the 10 milliampere. बात समझ में आ गई? So D MOSFET transconductance, that is in the similar way as JFET, GM is equal to GMO 1 minus VGS upon VGSO, for ये equal to VGS equal to 0 volt वाला जो वैल्यू है that is GMO. Okay? तो अगर ये भी क्वेश्चन कभी पूछा जाए यहां तक, देखो उनको पूछना तो चाहिए अगर पूछें तो, क्योंकि छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टाइम कम होता है,
उस सिचुएशन में अगर उनको सोल्व कराना है तो ड्रेन करंट की इक्वेशन को सोल्व कराना चाहिए इन प्रिंसिपल, बट अगर वो थोड़ा सा एडवांस में जाते हैं तो ऐसा न्यूमेरिकल सोल्व करा सकते हैं ऑफ ट्रांसकंडक्टेंस. ओके, सो इनपुट इम्पिडेंस इज वेरी हाई. नाउ what are the biasing situations of D MOSFET? Okay, so gate bias, self bias, voltage divider bias and zero bias. तो ये जो तीन है ये हमने JFET में देख ली हैं और somewhat similar conditions, similar results will be here in the D MOSFET as well. तो ये तीनों बाइसिंग हमें यहाँ पे दोबारा करने की जरूरत नहीं है. इनका जो बेसिक आइडिया था वो हमने JFET में डिस्कशन कर लिया था. यहाँ पे एक जीरो बाइसिंग कंडीशन और है, वो हमें देख सकते हैं कि जीरो बायस क्या होता है. तो जीरो बायस में और कुछ नहीं है, यहाँ पे जो एक रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे अप्लाइड नहीं है. तो रेजिस्टेंस ना होने की वजह से यहाँ पे कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा. वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा तो यहाँ पे देखिए कि VGS इज नाउ 0 वोल्ट, गेट टू सोर्स वोल्टेज इज नाउ 0 वोल्ट, क्योंकि IG है दैट इज ऑलमोस्ट 0. सो IG अगर 0 है, VGS 0 है, तो जो मैक्सिमम जो करंट होगा दैट विल बी IDSS. ड्रेन करंट विल बी मैक्सिमम एट VGS इक्वल टू 0 वोल्ट. यहां से जो रेजिस्टेंस हटा दिया गया है उसी वजह से अब वो बायसिंग कंडीशन यहाँ पे कोई भी नहीं है. इन दैट सिचुएशन VDD माइनस IDRD माइनस VDS इक्वल टू 0 और ID की वैल्यू है मैक्सिमम दैट इज IDSS. सो दिस इज हाउ यू कैन डिस्कस दिस जीरो बायस कंडीशन. ठीक है जी. जनरली दिस कॉमन सोर्स, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन. कॉमन सोर्स D MOSFET is generally used as an amplifier in the same way as JFET. JFET को हमने देखा था how it can works as an amplifier. उसी तरह से D MOSFET can also works as the amplifier. और जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होगी तो यू नो कि जैसी भी वोल्टेज कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं. अब आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज क्या, पॉजिटिव वोल्टेज क्या करती है गेट पे और नेगेटिव क्या करती है. तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में इनहांसमेंट मोड हो जाएगा और नेगेटिव हाफ साइकिल में डिप्लेशन मोड हो जाएगा. ठीक है जी. सो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा MOSFET मोस्ट सूटेबल है फॉर यूजिंग एज एन एम्पलीफायर. सो दैट इज द D MOSFET, कॉमन सोर्स D MOSFET कॉन्फ़िगरेशन. ओके, and also AC analysis of the voltage gain of D MOSFET is somewhat similar to the JFET, तो उसकी इतनी जरूरत हमें है नहीं. तो JFET की जो AC analysis में हमने voltage gain लिए थे, they are similar to the D MOSFET. Okay. Now the next is E MOSFET. The next type is E MOSFET. So E MOSFET operates only in the enhancement mode. पहला अच्छा क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन. E MOSFET डिप्लेशन मोड में काम नहीं कर सकता है. E MOSFET का मतलब ही है इनहांसमेंट मोड. बात समझ में आ गई. ऑल्सो E MOSFET हैज नो फिजिकल चैनल फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन बिकॉज द सबस्ट्रेट एक्सटेंड कंप्लीटली टू SiO2 लेयर. तो सबस्ट्रेट, दिस इज द P सबस्ट्रेट, ये कंप्लीटली एक्सटेंड कर चुका है. तो N चैनल्स के बीच में डायरेक्ट कोई भी कनेक्शन अभी नहीं है, कोई भी कनेक्शन अभी नहीं है. ठीक है. सो द डिवाइस स्टार्ट्स कंडक्टिंग, डिवाइस कब कंडक्शन करेगी? ऑन द एप्लीकेशन ऑफ VGS ओनली. द मिनिमम वैल्यू ऑफ VGS ऑफ प्रॉपर पोलैरिटी दैट टर्न्स ऑन द E MOSFET इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वोल्टेज. हमने क्या कहा कि चैनल इंड्यूस करना पड़ेगा. तो चैनल इंड्यूस करने के लिए VGS अप्लाई किया, तो जिस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ VGS पे चैनल इंड्यूस हो गया, इसका मतलब करंट कंडक्शन स्टार्ट हो गया, दैट वैल्यू ऑफ VGS इज नोन एज थ्रेशोल्ड वैल्यू, इज नोन एज थ्रेशोल्ड वैल्यू. बात समझ में आ गई? उसको क्या कहेंगे? थ्रेशोल्ड वैल्यू. नाम से क्लियर है कि VGS को अप्लाई किया, चैनल इंड्यूस नहीं हुआ. VGS को और तेज किया, मतलब और ज्यादा किया, चैनल इंड्यूस नहीं हुआ. चेंज करते गए एट ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ VGS चैनल इज नाउ इंड्यूस्ड. चैनल जैसे इंड्यूस होगा सो इन N और N, सोर्स और ड्रेन के बीच में कंडक्शन शुरू हो जाएगी. सो दैट मोमेंट where the channel is induced between the source and drain for the conduction of the drain current or the source current,
that value of VGS is known as threshold value of VGS. बात समझ में आ गई? So let's see what will happen. VGS को 0 वोल्ट से शुरू करके देखते हैं. अच्छा, एक चीज और है, ध्यान रखना, ठीक है, कि ये अभी हम एन चैनल की बात कर रहे हैं, तो एन चैनल डिवाइस रिक्वायर्स पॉजिटिव VGS, क्योंकि इनहांसमेंट मोड में ही काम करेगा, तो पॉजिटिव VGS ही उसको इनहांस करती है. और अगर ये पी चैनल होता, यहाँ पे पी होता, यहाँ पे एन होता, तो डिवाइस विल रिक्वायर नेगेटिव VGS. ठीक है, तो ये भी यहाँ पे ध्यान रखना है. सिंपल सिंपल छोटी छोटी चीजें हैं जो हम ओवरलुक कर जाते हैं कई बार, कि एन चैनल को लेके इतना फेमिलियर हो गए कि पी चैनल को भूल ही गए. तो अल्टीमेटली एक बार पी चैनल बना के भी समझ लेना है कि पी चैनल कैसे काम करेगा. ठीक है, तो VGS पॉजिटिव का मतलब है दिस वैल्यू इज पॉजिटिव एट द गेट. अगर ये गेट है तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू है. ओके, तो पी चैनल में ये उल्टा हो जाएगा. तो लेट्स डिस्कस ऑन एन चैनल नाउ. सो व्हाट विल हैपन व्हेन VGS इज इक्वल टू 0 वोल्ट. तो 0 वोल्ट पे क्या होगा? एज देयर इज नो चैनल connecting the source and the drain, the P substrate has only a few thermally produced free electrons only, P channel के अंदर, and the drain current is almost zero. Hence, E MOSFET is normally off when VGS equal to 0 volt. जब VGS 0 volt होता है, उस सिचुएशन में E MOSFET लगभग कट ऑफ ही है, कोई भी करंट वहां पे प्रोड्यूस अभी नहीं. बात समझ में आ गई? Now, when VGS is positive, VGS is positive. So when VGS is positive, it means gate is positive. और गेट पॉजिटिव है तो इस सबस्ट्रेट के अंदर, चैनल के अंदर क्या करेगा? देखो इधर, अगर ये वैल्यू यहां पे पॉजिटिव है, फॉर एग्जांपल, अगर यहां पे ये पॉजिटिव है, सो व्हाट विल हैपन? द नेगेटिव चार्जेस और द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स will be attracted towards SiO2. Negative electrons will be attracted towards the SiO2. It means near this region, near SiO2, a region will form where more number of free electrons will be there. Electrons will be there, negative charge will be there. Yes or no? So this region, which is the newly formed region because of the application of the voltage, is now somewhat similar to the N-type, and an induced channel will be created like this. So एक induced channel will be created like this. So here the current conduction can take place between these two N-type materials. Okay. So the channel will be induced, say like this. And hence, once the channel is induced, current will start flowing between source and the drain. So you can see the channel is induced with the application of the voltage. The positive voltage जब लगी है, then this happens. तो चैनल कब इंड्यूस हुआ है? जब N चैनल E MOSFET पे पॉजिटिव गेट वोल्टेज लगी है. क्लियर है? सो यही चीज यहां पे लिखी हुई है, that when VGS is positive, gate is positive, it attracts free electron in the P region. Hence, holes near the SiO2 filled, means near SiO2 negative charge layer will be experienced. Negative charge की layer वहां पे produce हो जाएगी, and this is something like we say that we have created a thin layer of N-type material just next to the SiO2. Okay, thus E MOSFET is turned on and drain current starts flowing from source to the drain. अब क्या होगा? अगर वोल्टेज को ज्यादा बढ़ाओगे तो जो N चैनल मीडियम बना है, जो इंड्यूस चैनल बना है, दैट विल बी मोर वाइडेंट, वो और ज्यादा एक्सटेंड करने लगेगा. सो मोर करंट विल बी देयर. अब यही होगा ना, देखो, अगर यहां पे समझें कि यहां पे जो चैनल बना था, ये चैनल बन चुका है. अब अगर और पॉजिटिव वोल्टेज यहां पे लग रही है तो और ज्यादा ये वाइडन होगा, ऐसे होता चला जाएगा, ऐसे होता चला जाएगा, राइट? सो इट मींस मोर ओपनिंग इज देयर.
So more current will be there. More current will be there. The minimum value of VGS that turns the E MOSFET on is known as threshold voltage of VGS. When VGS is less than the threshold voltage, तब तक क्या था? कोई भी करंट वहां पे नहीं था. So there is no induced channel and drain current ID is zero. Beyond VGS threshold, if the value of VGS, that is the newly formed channel, become more wider. So beyond VGS, it is the value लिख लो इसको, the value लिख लो इसको. The value of the VGS, that is the newly formed channel, becomes more wider, hence ID will be increased. तो अगर इससे ज्यादा बढ़ाएंगे वोल्टेज को तो current will be increased. Okay. If VGS decreases, now let us see कि यहां से हमने VGS को बढ़ा के फॉर एग्जांपल यहां तक ले आए हैं. Now if VGS is decreased from this point, so current will start decreasing, but we can decrease it only up to VGS. तो VGS थ्रेशोल्ड तक ही हम इसको डिक्रीज कर सकते हैं, अदरवाइज उससे नीचे जाएंगे तो कंप्लीटली ऑफ हो जाएगा, राइट? तो इफ VGS decreases but not below VGS threshold, then channel become narrower and hence ID decreases. Hence ID decreases. Okay, तो इसका जो प्लॉट है, जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व है, वो कुछ ऐसी दिखेगी कि VGS वर्सेस ID. तो VGS थ्रेशोल्ड तक तो आपको कोई करंट देखने को नहीं मिल रहा है, जीरो है. लेकिन जैसे VGS थ्रेशोल्ड को हम क्रॉस करते हैं, करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग लाइक दिस. ओके, सो दिस इज हाउ द कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ E MOSFET looks like. ओके, देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा, कि वैल्यू ऑफ IDSS फॉर E MOSFET इज जीरो. IDSS हमने क्या डिफाइन किया था कि ड्रेन करंट की मैक्सिमम वैल्यू, ड्रेन करंट की वैल्यू एट VGS इक्वल टू 0 वोल्ट. यही तो हमने IDSS डिफाइन किया अब तक. तो जब IDSS को हमने डिफाइन किया 0 वोल्ट पे, तो यहाँ पे तो जब 0 वोल्ट है तो करंट है ही नहीं, क्योंकि कोई भी चैनल वहां पे नहीं है. तो E MOSFET के लिए IDSS की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है. क्लियर है? बड़ा इंपॉर्टेंट है. ये देखो, इसका सिंबल देख लो, N चैनल E MOSFET, P चैनल E MOSFET. तो बाकी सब कुछ सेम है, बस यहां पे जो चैनल है उसको डॉटेड लाइन में हमने डिनोट किया है. ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है. और ये देखो, सबस्ट्रेट और सोर्स को कनेक्ट कर दिया गया है. सबस्ट्रेट एंड सोर्स इज कनेक्टेड. बाकी सब कुछ सेम है. द चैनल इज नाउ इन द डॉटेड फॉर्मेट. ओके, तो जो करंट की इक्वेशन है वो क्या होगी? देखो, तो जो करंट इक्वेशन है वो अब IDSS की वैल्यू ना रख के ID इज इक्वल टू K इंटू VGS माइनस VGS थ्रेशोल्ड का स्क्वायर, ऐसे ही स्क्वायर फॉर्म में बढ़ रही है, राइट? और जो K जो है दैट इज ए कांस्टेंट एक्चुअली. और जो इस कांस्टेंट की वैल्यू है, ये आप ये समझ सकते हो कि जो कंस्ट्रक्शन साइड से जो सीट मिलती है किसी भी डिवाइस की फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ डिवाइस, दैट K इज डिफरेंट. तो एक हर एक E MOSFET के लिए एक अपना K वैल्यू होगी. ठीक है, so that is a constant depending upon the type of the E MOSFET or the model of the E MOSFET that is given from the manufacturer side. Okay, now what are the biasing condition? तो biasing conditions जो हमने वहां पे अभी पढ़ी हैं वो सारी एप्लीकेबल नहीं है. कारण ये है कि हमें VGS पॉजिटिव वाली ही चाहिए होगी, अदरवाइज तो हमारा काम नहीं बनेगा यहाँ पे enhancement mode में. Okay, so certain biasing conditions are not allowed, but we always need greater VGS than VGS threshold. तो ये दो biasing condition इसकी important होती हैं, that is a drain feedback bias and voltage divider bias. देखो कैसे होगा अगर हम कहें drain feedback में क्या है. देखो, तो ड्रेन फीडबैक में एक हाई रेजिस्टेंस RG लगा हुआ है, और ये यहाँ पे गेट से जो ड्रेन है दैट इज नाउ कनेक्टेड. एज IG इज वेरी लेस, सो इट मींस गेट एंड द ड्रेन आर ऑलमोस्ट एट द सेम पोटेंशियल. क्योंकि करंट अब कोई यहाँ पे है नहीं, तो वोल्टेज ड्रॉप भी उसके अक्रॉस नहीं होगी. तो इस पॉइंट का और इस पॉइंट का जो वोल्ट पोटेंशियल है दैट विल बी सेम.
तो इसका मतलब अगर इसको मैं VD कहूं और इसको मैं VG कहूं तो VD इज इक्वल टू VG। तो अगर VDS हम देखें तो इट इज सिमिलर टू VGS, क्योंकि VD और VG बराबर हैं। तो यहां से इक्वेशन लगा सकते हो VDD माइनस IDRD माइनस VDS इक्वल टू 0, जो लगाते आए हैं। और दिस इज हाउ यू कैन solve the value of VDS or VGS in terms of VDD or IDRD. Okay. Similarly, voltage divider bias is there. So voltage divider bias mein you can see the situation is something like this. Again, the voltage drop across R2 is appearing across this VGS. So VGS is nothing but VDD upon R1 plus R2 into R2 times. So that is VGS, and IG is almost 0 again. So VDS is equal to here VDD minus IDRD, VDS equal to 0. उसी इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं। और ID की वैल्यू हमें पता है, दैट इज दिस वन जो ऊपर लिखी थी, K इंटू VGS माइनस VGS थ्रेशोल्ड स्क्वायर, ये ID की वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू टू बी ऑनेस्ट, बट बाकी जो हमने डिस्कशन किए हैं, जो वर्किंग के बारे में, कंस्ट्रक्शन के बारे में, उनके मोड्स के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक कर्व के बारे में, दे आर मोर इम्पोर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो विद दिस डिस्कशन we stop our discussion on E-MOSFET or MOSFET completely. So this completes our discussion on field effect transistor, FET dividing into JFET and MOSFET, and then JFET, DMOSFET and E-MOSFET. देखो, the working principle are very relative, very easy and interesting in case of FETs. So बस थोड़ा अलग है एक पैटर्न से जो आप बीजेटी में सोचते हैं, बाकी तो आसान है। तो इसको ऐसा नहीं समझना है कि छोड़ देना है या कुछ मुश्किल है। कुछ भी डाउट होगा तो पूछेंगे। स्कोरिंग है, अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो बहुत इजी क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, सो मैक्सिमम चीजें जो इंट्रोडक्शन में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली हैं। ज्यादा डिटेल में जाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू में रखते हुए वी शुड लिमिट आवर सेल्फ एट ए सर्टेन एक्सटेंट, और वो यही है। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर द फैक्ट्स। आई होप द थिंग्स आर क्लियर टू यू, और in the next lecture we will start our discussion on the next important topic, that is operational amplifier, op-amp. Okay, so in op-amp the working is, or the working idea or the operational idea is actually taken from the BJTs. Okay, so you can see कि हमने BJT पढ़ा, BJT का सारा डिस्कशन किया, उसका नेगेटिव फीडबैक कैसे काम करता है, उसके डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन कैसे काम करते हैं, उन्हीं सब आइडियाज को यूज करके वी हैव डेवलप्ड ए न्यू डिवाइस दैट इज ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो उसके अंदर जो डिवाइसेस यूज होंगे दैट आर बीजेटीज। ओके, और जो ये फैट वाला जो पोर्शन है ये अपने आप में एक सेपरेट है। तो ये हमने एक फैट और मोसफेट का एक अलग दो लेक्चर जो है वो हमने डिस्कस किए। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर। विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर with the discussion on op-amp. Okay, in case of any doubt, please feel free to discuss. Bye bye, have a good time.